سے پہلے بات کریں ماہ رمضان کی آمد۔ فیصل آباد میں ریلیف کی آس لگائے شہریوں پر ظلم۔ 10 کلو آٹے کی قیمت میں 510 روپے کا اضافہ۔ مفت فراہمی سے قبل 648 روپے میں ملنے والے 10 کلو آٹے کی قیمت 1160 روپے مقرر کر دی گئی۔ ماہ رمضان کی آمد۔ فیصل آباد میں ریلیف کی آس لگائے شہریوں پر ظلم۔ 10 کلو آٹے کی قیمت میں 510 روپے کا اضافہ۔ مفت فراہمی سے قبل 648 روپے میں ملنے والا 10 کلو آٹے کی قیمت 1160 روپے مقرر کر دی گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ آنے والے افراد کو سرکاری آٹا 1160 روپے میں ملے گا۔ محکمہ خوراک نے عام شہریوں کے لیے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں غیر رجسٹرڈ افراد کو 10 کلو آٹا 1160 روپے کا لینا ہوگا، جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد کو آٹا مفت دیا جا رہا ہے۔ 2 روز قبل 10 کلو سرکاری سبسڈائز آٹے کی قیمت 648 روپے مقرر تھی۔ آٹے کی قیمت ڈبل ہونے پر شہری سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ شہری کہتے ہیں کہ جن کو فری ملنا وہ تو گزارا کر لیں گے، جنہوں نے آٹا خرید کر کھانا ہے انہیں جیتے جی مار دیا گیا ہے۔ 500 روپیہ زیادہ مہنگا کر دیا ہے، اس لیے مزدور آدمی کی پہنچ سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، بہت مشکل دشوار پیش آ رہا ہے ہمیں۔ حکومت سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی کر کے وہ آٹا سستا فراہم کیا جائے۔ شہریوں نے حکومت سے آٹے کے ریٹس کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب ٹوبہ ٹیک سندھ میں بھی مفت آٹے کی تقسیم جاری ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد مفت آٹا لینے پہنچ گئے۔ ایک طرف ضلع کے 82 پوائنٹس پر مفت آٹے کی ترسیل جاری تو عام مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا مہنگا کر دیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مفت آٹے کی تقسیم جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کے اعداد و شمار کے مطابق ضلع بھر میں 3,16,000 سے زائد خاندانوں کو مفت آٹا ملے گا، جس کے لیے محکمہ خوراک نے ضلع کی 20 فلور ملوں کو کوٹا بھی فراہم کر دیا ہے۔ فلور ملوں کو 432 میٹرک ٹن گندم روزانہ کی بنیاد پر دی جائے گی۔ شہریوں کو روزانہ 30,268 تھیلے مفت دیے جا رہے ہیں۔ آج ہماری تحصیل میں 10,000 سے زیادہ بیگ ریسیو ہوئے ہیں اور ہماری جو ہیں وہ 19 ٹوٹل پوائنٹس ہیں، ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں، جس میں 11 ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اور 8 جو ہیں وہ ہمارے ٹرکنگ پوائنٹس ہیں۔ دوسری جانب ماہ رمضان میں ریلیف کی آس لگائے شہریوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا 508 روپے سے بڑھا کر 1158 روپے کا کر دیا گیا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1025 روپے سے بڑھا کر 2315 روپے کا کر دیا گیا ہے۔ آٹے کی قیمتیں ڈبل ہونے پر شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ مفت آٹے کی تقسیم اچھا اقدام، مگر آٹا خریدنے والے گزارا کیسے کریں؟ عوام کی دہائی۔ نہ بہن دا انتظام ہے، نہ پانی دا انتظام ہے، نہ ترتیب دا کوئی پتا کسی نو۔ شناختی کارڈ پھاڑ لیندے آ، سفارشیاں نو دے جاندے آ، جڑا میرے ورگا مزدور غریب ہے انہاں نو لین شناختی کارڈ واپسی دے کے 2 دن بعد آ جاؤ، 2 دن بعد آ جاؤ۔ یار صبح 7 بجے دے آ کے کھڑے آٹا نہیں ملن دیا، دھوپ تے مری جان دے، لائناں دے وچ کوئی ادھروں دھکے مار کوئی ادھروں مار، جے آواز آندی ادھروں جائے تو پھر کہندے بھائی 2 دن تو بعد آ جاؤ۔ مفت آٹا لینے کے لیے شہریوں کی طویل قطاریں بھی مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ ایسے شہری جنہوں نے ایک تھیلا لیا ہے وہ دوسرا تھیلا لینے بھی آ رہے ہیں، جبکہ دوسرا تھیلا 8 روز کے بعد ملے گا۔ انتظامیہ نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ سستا آٹا کہاں سے ملتا ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ ہے کیا ضرورت مند فلاحی منصوبوں سے ہی بے خبر؟ فیصل آباد میں اینٹوں پر کام کرنے والی خاتون بچہ گود میں اٹھائے معلومات ڈھونڈتی رہی۔ موڑ جہانگیر پر غربت کی 27 خاتون نے دل دہلا دیے۔ اللہ کام کی نظروں سے اوجھل خاتون نے حکومت سے امداد مانگ لی۔ کہتی ہے اینٹوں کے بھٹے پر کام کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ بہت دیر ہو گئی کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نے پھر انہوں نے پیٹ تو پالنا ہی ہے کام کر کے۔ خاتون نے شکوہ کیا کہ سستا آٹا کہاں سے ملتا کچھ پتہ نہیں، عرصہ دراز سے حکومتی مدد نہ مل سکی۔ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور ناظرین، یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قلت برقرار ہے۔ مفت آٹا تو دور، سستا آٹا بھی ملنا ناممکن ہو گیا۔ فیصل آباد میں شہریوں کے ریاض، شاہد چوک اور یوٹیلیٹی سٹورز پر چکر سستا سامان نہ ملا۔ ماہ رمضان کی آمد ہے لیکن شہری سستی اشیاء سے محروم ہیں۔ فیصل آباد کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خوردنوش کی قلت کو ختم نہ کیا جا سکا۔ شہری کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پر مفت آٹا تو کیا سستا آٹا بھی دستیاب نہیں۔ چکر پر چکر لگا رہے ہیں، ضرورت کی اشیاء قسمت ہی سے ملتی ہے۔ آٹا حکومت کہندی سی مفت ملے گا، لیکن مفت تو کیا مل دا بھی نہیں ملتا ہے، نہ گھیو ملتا، نہ آٹا ملتا، نہ چینی ملتی ہے، نہ پتی مل رہی ہے، جڑی اچھی چیز مہنگی ہے وہ نہیں دے رہے۔ آٹا نہیں ملتا، ہاں میں گیا تھا، آٹا نہیں دیتا کہ جاؤ ادھر آٹا نہیں ملتا۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ بھائی آٹا نہیں ملتا، کیا کرے گا غریب لوگ، کیا کرے گا؟
शहरियों का कहना था कि ओपन मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतें ज्यादा हैं। सब्सिडी वाला घी ओपन मार्केट में 430 रुपए फी किलो जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 490 रुपए फी किलो में मिलता है। कुछ चीज़ें मिलती हैं जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो इधर कहते हैं नहीं, वो प्राइवेट जगह से भी मिल जाती हैं। बस हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर है ना सख्त से इक़दाम किए जाएं ताकि काम आसानी में हो। शहरियों ने मुतालबा किया कि रमज़ान मुबारक में सस्ती और बुनियादी ज़रूरत की अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। रमजान स्पेशल पैकेज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिर अख्तर जमान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वत सईद ने चीफ सेक्रेटरी को फ्री आटा सप्लाई पर ब्रीफिंग दी। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुसव्वर खान न्यासी और महकमा खुराक के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। कमिश्नर ने फ्री आटे की तकसीम के पहले रोज आटे की तकसीम के अमल और डिविजनल और जिला इंतजामिया के अफसरान की तरफ से मॉनिटरिंग के अमल पर ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि बेहतरीन इंतजामात की बदौलत डिवीजन में पहले रोज फ्री आटे की तकसीम हुई। शनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग, अहलियत की जांच पड़ताल में सामने आने वाले मामूली मसाइल मौके पर हल कर दिए गए हैं। वजीर आजम की जानिब से कम आमदनी वाले अफराद के लिए पेट्रोलियम की कीमतों में रिलीफ देने पर गौर। पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए फी लीटर तक रिलीफ की खबर पर शहरियों ने हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कम आमदन वाले अफराद को पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देने पर गौर किया गया। मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी गाड़ी का इस्तेमाल करने वालों को 50 रुपए फी लीटर तक रिलीफ की तजवीज़ दी गई, जिस पर शहरियों ने उम्मीदें वाबस्ता कर ली। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से, चले यही सही 50 रुपए सस्ते सही तो मिले तो सही, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मजदूर आदमी के लिए तो बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। शहरियों का कहना था महंगाई के दौर में पेट्रोल सस्ता मिलने से आसानी होगी। रिक्शा ड्राइवर ने कहा पेट्रोल की कीमत कम होने से हमारा रोजगार भी बेहतर होगा। इससे बहुत अच्छा फायदा होगा तो हमें भी नुकसान ज्यादा नहीं होगा। हमारा 500 में पेट्रोल तो कुछ भी नहीं होता, इससे ये 2 के गेड़े लगते हैं बस 500 से तेल में से। इससे बच्चों का खर्चा भी निकलता है। सस्ता हो तो फिर तो हमारे बच्चों का खर्चा भी निकले। शहरियों ने पेट्रोल में रिलीफ देने के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। कहते हैं इकदाम से आम आदमी के लिए आसानी होगी। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। पीआईए का फैसलाबाद से दुबई और मस्कत के लिए इजाफी परवाजें चलाने का फैसला। 26 मार्च से 28 अक्टूबर तक इजाफी परवाजें चलाई जाएंगी। दुबई और मस्कत के लिए फ्लाइट ऑपरेशन में एक परवाज का इजाफा होगा। हफ्ते में फैसलाबाद से मस्कत के लिए 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। फैसलाबाद से दुबई के लिए हफ्ते में 3 परवाजें ऑपरेट होंगी। पीआईए ने फैसलाबाद के लिए इजाफी परवाजों का शेड्यूल जारी कर दिया। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर। आलमी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत, चीन और वियतनाम पहले 3 नंबर पर है। बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे आगे निकल चुके हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की महंगी कास्टिंग बुनियादी वजह है। टेक्सटाइल शोबे में नाम रखने वाला मुल्क पाकिस्तान तनस्सुली की तरफ गामजन। टॉप 3 में रहने वाला मुल्क टॉप 10 से भी निकल गया। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान अपनी पोजीशन खो बैठा है। टॉप 3 में भारत, चाइना, वियतनाम अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। टेक्सटाइल शोबे में नाम रखने वाला मुल्क पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन। टॉप 3 में रहने वाला मुल्क टॉप 10 से भी निकल गया। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान अपनी पोजीशन खो बैठा। टॉप 3 में भारत, चाइना, वियतनाम अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे आगे निकल गए। बांग्लादेश छठे जबकि श्रीलंका टॉप 10 में आ गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जारी करदा सर्वे रिपोर्ट में पाकिस्तान के टॉप 10 से बाहर होने की बड़ी वजह महंगाई का स्टिंग करार दिया गया। पाकिस्तानी रुपए की गैर मुस्तकम सूरत हाल और मुआशी बदहाली भी बड़ा मसला है। दूसरी जानिब एफबीआर ने टैक्स चोरों के लिए मजीद आसानी कर दी। एक तरफ जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए अरबों रुपए के सेल्स टैक्स चोरी, दूसरी जानिब बगैर किसी तस्दीक घर बैठे ऑनलाइन सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन भी मसाइल पैदा करने लगे। एफबीआर ने टैक्स चोरों के लिए मजीद आसानी कर दी। एक तरफ जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए अरबों रुपए की सेल्स टैक्स चोरी, दूसरी जानिब बगैर किसी तस्दीक घर बैठे ऑनलाइन सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन भी मसाइल पैदा करने लगी। ऑनलाइन सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए किसी तस्दीक की जरूरत नहीं होगी। जाली सेल्स टैक्स इनवॉइस के जरिए सालाना अरबों रुपए टैक्स चोरी होती है। कवानीन में नरमी से फर्जी या बोगस रजिस्ट्रेशन में मजीद इजाफा होगा। एफबीआर हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शहरियों की सहूलत के लिए शुरू की गई है। कारोबारी अफराद को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फर्जी कंपनियां और जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस की रोकथाम के लिए सख्त मॉनिटरिंग करेंगे।
रमजान की आमद और महंगाई साथ साथ खवातीन ने रमजान बजट बनाने का आगाज कर दिया। सहर और इफ्तार के लवाजमात तो दूर, जरूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो गया। रमजान की आमद के साथ ही घरेलू अखराजात बढ़ने लगे। सहर और इफ्तार की जरूरियात पूरी करने के लिए खवातीन जतन करने लगी। फैसलाबाद की खवातीन कहती हैं कि रमजान रहमतों बरकतों का महीना है। कोशिश होगी कि बच्चों और बड़ों की फरमाइशें पूरी की जा सकें। खवातीन ने घर की जरूरियात पूरी करने के लिए कमर कस ली। रोजे रखने होते हैं, बड़े बच्चों ने भी रखने होते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं जो नहीं भी रोजा रख पाते अभी, तो उनकी भी फरमाइशें होती हैं कि मम्मा हम पकोड़े खाएंगे, समोसे हो जाएं, या उसके अलावा कोई बर्गर डिश हो जाए, कोई चिकन की डिश हो जाए। रमजान और मुबारक में इबादत के साथ साथ फरमाइशें भी बढ़ जाती हैं। बच्चे बहुत शौकीन होते हैं। पहला रोजा रखा जाए तो इफ्तारी में मजेदार खाने हो, ताहम महंगाई ने शहरियों को परेशान कर दिया है। घरों में फरमाइशें बहुत ज्यादा होती हैं, भाइयों की, बाबा की, कि हम लोगों ने रोजा रखा है कि अच्छे से अच्छा है तमाम हो, कि रमजान शरीफ का महीना आया है, कौन सा साल में एक मरतबा आता है। घर में इतनी बचत नहीं होती कि हम इतना एहतमाम कर सके। खवातीन कहती हैं कि महंगाई ने सारा बजट खराब कर दिया है। घर वाले समोसे, पकौड़े और चिकन की डिशेस बनाने की फरमाइश करते हैं जो बजट से बाहर है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में महंगाई पर काबू पाएं। कैमरामैन शाजिब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही किताबों की कीमत क्या बढ़ी। जिल्द सासों ने भी किताबों की जिल्दें महंगी कर दी। एक किताब की जिल्द 100 रुपए में की जाने लगी। टोबा टेक्सिंग में नए तालीमी साल के आगाज पर किताबें महंगी हो गई। वालिदैन पर किताबों का इजाफी बोझ बढ़ गया। कहते हैं महंगी किताबों को जिल्द कराना जरूरी है ताकि किताबों की बचत हो सके। बच्चों का नया साल शुरू हो गया है, बुक्स के हवाले से बुक्स भी पहले से महंगी हो गई हैं और बुक्स की बाइंडिंग भी वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाइंडिंग ना करवाइए तो बच्चे जल्दी वो किताबें फाड़ देंगे, ख़राब हो जाएंगे पेज। किताबों की जिल्दें कराने का कारोबार भी अरूज पर पहुंच गया। जिल्द की कीमत भी बढ़ गई। एक किताब की जिल्द 100 रुपए में होने लगी। दुकानदार कहते हैं मटेरियल महंगा हो गया है। पहले हम जो करते थे वो 5-10 रुपए की जिल्द होती थी, अब हाल ये हो गया कि ये 80 रुपए की ये जिल्द होती है जो अच्छे प्लास्टिक में है, और रेट भी बढ़ गए हैं और माल भी बहुत कम आ रहा है। गत्ते से होने वाली जिल्द की जगह अब एक्सरे और प्लास्टिक की जिल्द ने ले ली है। बिलाशुबा इससे किताबें तवील अरसा के लिए महफूज हो जाती हैं, लेकिन कीमतें बढ़ने पर वालिदैन परेशान हैं। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। रेवेन्यू फीसेस और टैक्सेस में इजाफे से रजिस्ट्रीज का काम बुरी तरह मुतासर। गुज़श्ता साल के निस्बत से रजिस्ट्रीज की तादाद निस्फ रह गई। रेवेन्यू से वाबस्ता अफराद कहते हैं कि टैक्स कम किए बगैर कारोबार करना मुश्किल है। वकला कहते हैं कि वक्त आ गया है कि अब स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इकदाम किए जाएं ताकि हालात बेहतर बनाए जा सकें। उनका कहना था कि अगर कारोबार चलेगा तो ही हुकूमत का रेवेन्यू बेहतर हो सकेगा। भैया इसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है वो रेट्स का ही है। प्रॉपर्टी का जो ग्राउंड रियलिटी पे रेट है, ग्राउंड पे जो है वो 2.5 लाख रुपया मरला के हिसाब से है, और जो गवर्नमेंट ने जो उसकी वैल्यूएशन की है वो 3.5 लाख के हिसाब से की हुई है। और उसमें भी जो है 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो अपना डीसीओ रेट है वो अलग है, और जो FBR का रेट है उसका एक अपना ही रेट है, और उनके अपने ही टैक्स रेशो है। 5% के हिसाब से जो है FBR वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है। तो ये इतनी अंधेर नगरी है, यानी कि अगर एक बंदा 5 लाख रुपए का प्लाट लेता है तो 2.5 लाख रुपए की उसकी रजिस्ट्री होती है। तो इतना जो आपको मुल्की हालात देख रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, तो वो रजिस्ट्रियाँ कहाँ से आएंगी, कैसे होंगी। और ये FBR का एक ऐसा जो है इन्होंने वो टैक्स लगा दिया, हालांकि पहले ये था 2%, तो 2% से उठा के डायरेक्ट 5% पे ले गए। फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज के तलबा की हड़ताल का मामला प्रो वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की ज़ेरे निगरानी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। सिलेबस से हटकर पर्चा हुआ तो तलबा को रियायती नंबर्स दिए जाएंगे। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना था कि इंक्वायरी कमेटी चेक करेगी कि पर्चा सिलेबस से था या बाहर से। अगर सिलेबस से हटकर पेपर हुआ तो तलबा को रियायती नंबर दिए जाएंगे। सिलेबस में से पर्चा होने पर तलबा को फेल ही करार दिया जाएगा। उनका कहना था कि मेडिकल की तालीम बहुत मुश्किल और खास है, उसका ताल्लुक इंसानी जिंदगियों से है, और वैसे भी मेडिकल यूनिवर्सिटी खुद मुख्तार इदारा है, इसलिए इम्तिहान और नताइज हमने ही जारी करने हैं। दूसरी जानिब ड्रग स्क्वाड फैसलाबाद का CEO हेल्थ के हमरा मदीना टाउन में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रीज पर छापा। करोड़ों रुपए मालियत की हर्बल, एलोपैथिक और होम्योपैथिक अद्वियात कब्जे में ले ली।
ड्रग स्क्वाड फैसलाबाद का सीईओ हेल्थ के हमरा मदीना टाउन में जैली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, करोड़ों रुपए मालियत की हर्बल, एलोपैथिक और होम्योपैथिक अद्वियात कब्जे में ले ली। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंजाद, ड्रग कंट्रोलर साकिब भट्टी, डेप्टी ड्रग कंट्रोलर शहबाज और जिशान ने कार्रवाई की। सीईओ हेल्थ का कहना था कि ड्रग स्क्वाड टीम मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही थी। फैक्ट्री में इंसानों और जानवरों की अद्वियात तैयार की जा रही थी। ड्रग कंट्रोलर साकिब भट्टी का कहना था कि फैक्ट्री मारूफ कंपनी का लेबल लगाकर अद्वियात फरोख्त कर रही थी। अद्वियात के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवा रहे हैं। मदीना टाउन के अंदर इकबाल नगर का इलाका है और इसमें हमारे ड्रग स्क्वाड फैसलाबाद ने मुश्तरका कार्रवाई की है। यहाँ कसीर तादाद में जो है ना सिर्फ वेटनरी की बल्कि ह्यूमन यूज़ के लिए और हर्बल टाइप्स की मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल जो आ सकती हैं वो यहाँ बन रही थी। ये बेसिकली ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, इसका कोई नाम नहीं था, लेकिन ये 4 से 5 मुख्तलिफ रिनाउंड कंपनीज की मेडिसिन बना रहे थे। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एक और क्वालिटी ये थी कि ये यानी कि हर तरह की, ये वेट की भी मेडिसिन बना रहा था, उसके साथ ये ह्यूमन की भी मेडिसिन बना रहा था, ये हर्बल भी बना रहा था और होम्योपैथिक भी बना रहा था। उनका मजीद कहना था कि ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैक्ट्री का मालिक मौके से फरार हो गया। मुल्जमान के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। मुकदमे के अंदराज के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का बीमार शहरियों के लिए एहसन इक़दाम, पंजाब भर में फ्री हेल्थ कैंप लगवा दिए गए हैं। निगरान पंजाब हुकूमत का बीमार शहरियों के लिए एक और एहसन इक़दाम सामने आया है। पंजाब भर के हॉस्पिटल में फ्री हेल्थ कैंप लगा दिए गए, जहां मुख्तलिफ ढंग के तमाम मराकज़ सेहत पर हेल्थ कैंप का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल समेत दीगर मराकज़ सेहत पर हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। अहमदपुर सियाल में THQ हॉस्पिटल और RHC हॉस्पिटल गढ़ महाराजा में 3 रोजा कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आरिफ कुरैशी ने किया। कैंप में एड्स, हेपेटाइटिस C और PCR का टेस्ट भी होगा, जबकि ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर और सांस की बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। MS डॉक्टर हफीजुल्लाह खान ने कहा, स्क्रीनिंग के बाद मरीजों को इलाज मुआवजा की सहूलियात भी फराहम होंगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से एक छत के नीचे आपको तमाम तरह की स्क्रीनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पे तमाम तरह की स्क्रीनिंग की सहूलियात मुहैया हैं ताकि आप आएँ और अपने बच्चों का मेडिकल करवाएं, अपना मेडिकल करवाएं और आप एक भरपूर और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। इसी तरह शोरकोट में भी THQ हॉस्पिटल में 3 रोजा फ्री स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। कैंप का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल ने किया। DSP मेहर हयात, MSTHQ डॉक्टर नवीद सफ्तर, DDHO डॉक्टर रेहान, डॉक्टर वासिफ अल्ताफ के अलावा दीगर अमला भी इस मौका पर मौजूद था। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से हफ्ता सेहत की मुहिम स्टार्ट की गई है, जो कि तमाम THQs और तमाम DHQ लेवल हॉस्पिटल्स में ये की जाती है। इसका मकसद ये होता है कि हमारे तमाम जो पेशेंट्स आते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए और उनके जो हेपेटाइटिस के रिलेटेड है और उसके अलावा TB के जो रिलेटेड है वो प्रॉपर टेस्ट किए जाए और उनका डाटा जो है वो मुरतब किया जाए। डिप्टी कमिश्नर चिन्नौट मोहम्मद आसिफ रजा ने भी DHQ हॉस्पिटल में 3 रोजा सेहत मेले का इफ्तिताह कर दिया। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक, DHO डॉक्टर शहजाद खलील, MS डॉक्टर अल्ताफ हुसैन भवाना, डॉक्टर मोहम्मद खान समेत दीगर ने शिरकत की। ताहम तहसील हॉस्पिटल भवाना में लगाया जाने वाला 3 रोजा हेल्थ मेला जिल्लत मेला बन गया। हेल्थ मेले में शहरियों की कसीर तादाद शरीक तो हुई, लेकिन सिफारिश पर चेकअप अद्वियात दी गई, जिस पर बुजुर्ग शहरी फट पड़े। कहा, भूख के प्यास से बैठे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत से मुतालिबा है तरजीही बुनियादों पर चेकअप और अद्वियात दी जाएं। उधर जिला टोबा में भी शहरियों के मुफ्त तिबी मुआयना के लिए कैंप लगा दिए गए। बड़ी तादाद में शहरी तिबी मुआयना के लिए मराकज़ सेहत में पहुंच गए। 22 मार्च तक मुफ्त तिबी मुआयना किया जाएगा। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद ने MS डॉक्टर अल्ताफ हुसैन के हमरा इफ्तिताह किया। इसी तरह गोजरा में भी हफ्ता सेहत का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान अशरफ, MS मसूद विर्क ने इफ्तिताह किया। 3 रोजा कैंप में शहरियों की बड़ी तादाद मुफ्त मुआयना करा रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुफ्त स्क्रीनिंग कैंप और तिबी सहूलियात की फराहमी के इकदाम को शहरी सराह रहे हैं। RPO फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान के साथ अमन कमेटी की मुलाकात। CPO अली नासिर रज़वी भी शरीक हुए। वक्त में मौलाना यूसुफ अनवर, मुफ्ती ज़िया मतनी और शाहिद रज़ाक सिका भी शामिल थे। अमन कमेटी ने पुलिस हुकाम को रमजान उल मुबारक में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर RPO डॉक्टर आबिद खान का कहना था कि मजहबी रवादारी बरकरार रखने के लिए उलमा कराम ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। रमजान उल मुबारक के मुकद्दस माह में मसाजिद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। फैसलाबाद पुलिस उलमा कराम की काविशों को सराहती है। दूसरी जानब GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लोहालपुर इंडस्ट्रियल एक्सपो का इनेकाद। मुल्क भर से फूड, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और एजुकेशन कंसल्टेंट्स समेत इंडस्ट्रीज के स्टॉल्स लगाए गए। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लायलपुर इंडस्ट्रियल एक्सपो का इनेकाद, जिसमें मुल्क भर से 50 से ज्यादा इंडस्ट्रीज ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज और प्रमोशंस के स्टॉल्स लगाए। इवेंट ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर इंडस्ट्री एकेडमिया
लिंकेज डॉक्टर उमैर रशीद बाजवा का कहना था कि एक्सपो का मकसद तलबा को इंडस्ट्री में मुस्तकबिल के चैलेंजेस बारे आगाही देना था। तो पाकिस्तान इस वक्त जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन का शिकार है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डेफिशिएंसीज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस वक्त पाकिस्तान अपनी 40% कैपेसिटी से भी नीचे चला गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। एक्सपो में ग्लोबल अलायंस फॉर इम्पोर्ट न्यूट्रिशन के पॉलिसी एडवाइजर चौधरी फैज रसूल समेत मुख्तलिफ शोबा जात से माहिरीन ने शिरकत की और इंडस्ट्री इकदामिया के रवाबित मजबूत करने को वक्त की जरूरत करार दिया। पॉलिसीज बन सकती हैं या बन रही हैं या बन चुकी हैं, जो प्रोग्राम्स बनने जा रहे हैं उसके अंदर अपना रोल को आइडेंटिफाई करें और कंट्रीब्यूट करें। नुमाइश में पंजाब फूड अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबा जात के स्टॉल समेत मुल्क भर से फूड, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन कंसल्टेंट्स और दीगर इंडस्ट्रीज की तरफ से अपने प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाए गए। पाकिस्तान की लार्जेस्ट डिहाइड्रेशन फैसिलिटी को रिप्रेजेंट करें और द पर्पस बिहाइंड इज टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ऑफ पाकिस्तान which is ranging above 40% right now. इंडस्ट्री वालों को थोड़ा अपना फीडबैक देने का टाइम मिल जाता है, एकेडेमिया को थोड़ा पता चलता है कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट किस किस्म की है। तो ये इंटरेक्शन अगर नहीं होगा तो हम जो है बहुत पीछे रह जाएंगे, जो हम बहुत पीछे रह गए हैं। अगर दुनिया में देखें तो वो तो डेली बेसिस के ऊपर ये इंटरेक्शन हो रहा होता है। लालपुर इंडस्ट्रियल एक्सपो में डॉक्टर सोफिया अनवर, डॉक्टर नदीम सोहेल, डॉक्टर मजहर हयात, डॉक्टर शहजाद चट्ठा, डॉक्टर सलमा अंबर, डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक और डॉक्टर शफाकत समेत फैकल्टी मेंबरान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के लिए आसान कर्ज से जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से निशिस्त कर्ज के असूल के लिए फैसलाबाद में मालूमाती डेस्क कायम। कारोबारी अफराद बैंक से कम मार्कअप पर कर्जा लेने के अहल होंगे। आसान शराइत पर कर्जे देने और कारोबार के फिरोग के लिए स्टेट बैंक ने झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मालूमाती नशिस्त रखी। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक वकास काशिफ बाजवा ने आगाही दी। उन्होंने बताया कि कर्ज की दरखास्तों पर तरजीही बुनियादों पर कार्रवाई की जाएगी। स्टेट बैंक की और कमर्शियल बैंक्स की एसएमई फाइनेंसिंग के लिए स्कीम्स हैं, उनको यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके साथ शेयर किया जाए और उनको इन स्कीम्स के तहत जो लोन्स की प्रोवाइड करने हैं उसको फैसिलिटेट किया जाए। तो इस सिलसिले में हमने जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कोलैबोरेट किया था और यहाँ पर आज बिज़नेस कम्युनिटी और कमर्शियल बैंक्स आए हुए हैं। कमर्शियल बैंक्स ने यहाँ पर अपने स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं और एट द स्पॉट एप्लीकेशंस भी ले रहे हैं। कर्ज स्कीमों पर मालूमात और मौका पर दरखास्त मौसूल करने का बंदोबस्त भी किया गया। सीनियर डिप्टी चीफ मैनेजर मोहम्मद अकबर, डेवलपमेंट फाइनेंस ऑफिसर आबद मसूद और मुकामी बैंकों के सरबराहान ने भी शिरकत की। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद अंसर अली ने कहा कि मेंबरान स्टेट बैंक की स्कीमों से भरपूर फायदा उठाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी और पूरे जंग रीजन के लोगों को ये स्कीम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सारे बैंक्स इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, स्टेट बैंक खुद फैसिलिटेट कर रहा है, फिर स्टेट बैंक की अपनी एसएमई की स्कीम है और ख़ासतौर पर सोलर के हवाले से स्टेट बैंक की जो स्कीम है वो 6% मार्कअप पे हम सोलर दे रहे हैं, चाहे आप घर के लिए लगवा लें चाहे कारोबार के लिए लगवा लें। सीनियर नायब सदर झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स हसन शाहिद शेख और नायब सदर फैजान मलिक ने स्टॉल्स का दौरा करवाया। सदर अंजमन ताजरान मोहम्मद हाशिम, सेक्रेटरी चैम्बर आहद चीमा भी शरीक हुए। सदर चैम्बर अंसर अली ने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। झंग फेस्को के 2 लाइनमैन्स के रिटायरमेंट के सिलसिले में तकरीब। जीएम ऑपरेशन राना अयूब, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन मियां रफीक, चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट उमर हयात गोंदल, SIGSO राव मोहम्मद अली और PDGSI असमतुल्ला समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। फेस्को झंग के 2 लाइन्समैन की रिटायरमेंट पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जीएम ऑपरेशन राना अयूब, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन मियां रफीक, चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट उमर हयात गोंदल, SEGS और राव मोहम्मद अली, PDGSE असमतुल्ला ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके अलावा SE अफजल काठिया, एक्शन शेख मुदस्सिर, टेक्निकल ऑफिसर लियाकत अवान और PRO इमरान बलोच समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जीएम ऑपरेशन राना अयूब ने कामयाब मुद्दत मुलाजमत पर दोनों अफसरान को मुबारकबाद पेश की। मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन्होंने अपनी पूरी सर्विस में अपनी ड्यूटी बेअहसन तरीके से अंजाम देते हुए और इस महकमे की खातिर काम करके इसका नाम फख्र से बुलंद किया। तकरीब के इख्तिताम पर जीएम ऑपरेशन राना अयूब ने रिटायरमेंट होने वाले मुलाजमीन को तोहफे भी पेश किए। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 झंग। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद जिग फ्लिंग स्टेशन के 1 माह मुकम्मल होने पर लकी ड्रॉ के जरिए इनामात की बारिश। इनामात में 1 मोटरसाइकिल, 1 LED, 5 मोबाइल और 5 हेलमेट दिए जाएंगे। फैसलाबाद जिग फ्लिंग स्टेशन में 1 मुकम्मल होने पर लकी ड्रॉ के इनामात तकसीम किए गए। इनामात में 1 मोटरसाइकिल, 1 LED, 5 मोबाइल फोन्स और 5 हेलमेट दिए गए। CO राना अब्दुल्ला कहते हैं कि अगले माह लकी ड्रॉ में उम्रे का टिकट दिया जाएगा।
फैसल आबादी हो जाए तैयार। ईद से पहले ईदी गुलबर्ग में बाटा की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। बाटा ने जूतों पर फ्लैट 20% डिस्काउंट की खुशखबरी सुना दी। फैसलाबाद गुलबर्ग में बाटा की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। बाटा ने फैसलाबादियों को ईद से पहले ही ईदी देने का ऐलान कर दिया। बाटा ने जूतों पर फ्लैट 20% डिस्काउंट की खुशखबरी सुना दी। इफ्तिताही तकरीब में मैनेजर डायरेक्टर मलिक इमरान ने खसूसी शिरकत की और फीता काट कर ब्रांच का इफ्तिताह किया। हमने एक प्रोग्राम बनाया था अपने स्टोर्स को अपग्रेड करने का, उस सिलसिले में गुलबर्ग पहला स्टोर है फैसलाबाद में। बाकी हमने पिछले हफ्ते कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में भी कुछ अपग्रेड किए हैं। तो ये बात है कि इधर पूरी वैरायटी होगी। बाटा की जो भी इंटरनेशनल कलेक्शन भी है, जो लोकल कलेक्शन भी है, और इसको इस तरीके से बनाया कि एक हमारे जो कस्टमर हैं उनको बेहतरीन कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस दिया जाए। फैसलाबादियों की बड़ी तादाद भी बाटा की इफ्तिताही तकरीब में पहुंच गई। ऑपरेशनल मैनेजर तारिक महमूद और एरिया मैनेजर शुएब ने खसूसी शिरकत की। बाटा के रिटेल मैनेजर फैसल महमूद का कहना था कि ईद से कबल शहरियों को बड़ी ऑफर दी है। ये महंगाई का दौर है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए महंगाई से, तो ये ईद से पहले ईदी है कि लोग पहले आएँ और इस वक्त रश कम होता है और 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ईद शुरू होने से पहले ही ईद की खुशियाँ हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं। 20% बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट है। आप सारे अपने फैमिली के साथ तशरीफ़ लाएं और इसका बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाएं। आप फैसलाबादियों ने भी गुलबर्ग में बाटा की नई ब्रांच के इफ्तिताह को खुश आइंद करार दिया। कहते हैं कि बाटा की क्वालिटी बहुत बेहतर है। यहाँ से खवातीन, मर्द और बच्चों की भी वैरायटी मौजूद है। पहले की निस्बत तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, डिज़ाइन भी अच्छे हैं। बाकी अब देख रहे हैं कि अच्छा लगा तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर खरीदेंगे। कोशिश तो कर रहे हैं, अभी अच्छा मिल जाए हमारी पसंद का तो लेके जाएं। बाकी हमें तो अब तक तो कोई नहीं पसंद आया। बहुत खुशी हुई है, बाटा वालों ने ये अपॉर्चुनिटी दी है हमें ईद से पहले, क्योंकि इससे मैं अपनी फैमिली के बच्चों के साथ आया हूँ। क्योंकि इससे ये होगा ना, महंगाई के दौर में बचत हो जाएगी हमारी। ये 3 दिन का डिस्काउंट 20% बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। बच्चों के स्कूल शूज़ लेने आए हैं हम, तो अच्छी है इनकी हर चीज़ ना, मुनासिब कीमत में मिल रही है। फैसलाबाद गुलबर्ग में बाटा की नई ब्रांच पर 20% डिस्काउंट 3 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।